علیکم TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کوکب فاروقی۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران سعودی کشیدگی کا حل، اسلام آباد مذاکرات کی میزبانی کو تیار ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ رضا ربانی نے سفارتی محاذ پر بھارتی سیاستدان کو شکست دے دی۔ فنکار کی جانب سے برطانوی شاہی جوڑے کے لیے تحفہ۔ پاکستان بچانا ہے تو ہمیں سری نگر میں جنگ لڑنی ہے، سراج الحق۔ میرے موکل کی جان کو خطرہ ہے، وکیل آصف علی زرداری۔ پیرس FATF اجلاس، دہشت گردی کی مالی امداد کے خلاف پاکستان کے اقدامات پر غور۔ وفاقی دارالحکومت اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے۔ جسٹن ٹروڈو کی بلٹ پروف جیکٹ پہن کر انتخابی مہم میں شرکت۔ کنزرویٹو کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے جو ہوا کریں گے، جگمیت سنگھ۔ کینیڈین صوبے مینیٹوبا میں برفانی طوفان کے سبب ایمرجنسی نافذ۔ اسکاربرو میں راہگیروں کو کار کی ٹکر، 3 زخمی۔ جاپان میں سمندری طوفان ہاگیبس کے باعث 19 افراد ہلاک، 140 سے زائد زخمی۔ چین کے خلاف سازش کرنے والوں کی ہڈیاں توڑ دی جائیں گی، چینی صدر۔ امریکہ کی ترکی کے خلاف پابندی کی تیاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ بلٹن میں خوش آمدید۔ بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے، وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، جبکہ سعودی عرب نے ہر ضرورت پر ہماری مدد کی ہے۔ میرے دورے کا اہم مقصد ہے کہ ہم خطے میں ایک اور تنازع نہیں چاہتے۔ مزید احوال جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ہم ایران اور سعودی عرب میں جنگ نہیں چاہتے، جنگ کی صورت میں خطے میں غربت پھیلے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایرانی صدر حسن روحانی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میری صدر حسن روحانی سے تیسری ملاقات ہے۔ وزیر اعظم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پاکستان ایران کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر حسن روحانی سے ملاقات کے دوران باہمی تعلقات، تجارت اور ایک دوسرے سے تعاون کے طریقہ کار پر بات ہوئی۔ This is my 3rd meeting with you, Mr. President. First was one in April. Then I met you in New York for a brief while in Bishkek. And now this meeting. We discussed bilateral relationship, trade, how we can help each other. We have very strong old ties between Iran and Pakistan. Pakistan still remembers how Iran stood with us in 1965 when Pakistan was facing hostilities. عمران خان نے کہا کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، جبکہ سعودی عرب نے ہر ضرورت پر ہماری مدد کی ہے۔ میرے دورے کا اہم مقصد ہے کہ ہم خطے میں ایک اور تنازع نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے 80 لاکھ کشمیریوں کو قید کر رکھا ہے، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ایران کی حمایت پر شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات میں حوصلہ افزائی ہوئی ہے، باہمی تعلقات، تجارت اور ایک دوسرے سے تعاون کے طریقہ کار پر بات ہوئی ہے۔ The main reason I came over with my delegation was that we do not want a conflict in this region. Pakistan suffered 70,000 casualties in the last 15 years in the war on terror. Afghanistan is still suffering. People of Afghanistan
Syria, terrible devastation taking place there. So we do not want another conflict in this part of the world. इस मौके पर ईरान के सदर हसन रूहानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और ईरान पड़ोसी दोस्त मुल्क हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान से हालिया वाक़यात खुसूसन खलीज फारिस और दीगर मामलात पर बात की। उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान सिक्योरिटी और अमन से मुतालिक सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और ईरान मिलकर खित्ते के इस्तेहकाम के लिए काम कर सकते हैं। सदर हसन रूहानी ने कहा कि अगर कोई मुल्क समझता है कि खित्ते में अदम इस्तेहकाम के बदले कोई कार्रवाई नहीं होगी तो वो गलती पर है। उन्होंने मुतालबा किया कि यमन में जंग फौरी बंद की जाए, जबकि वहाँ के अवाम की मदद भी की जाए। अमेरिका को चाहिए कि ईरान पर आयद पाबंदियां उठाए। ईरानी सदर हसन रूहानी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और ईरान समझते हैं कि इलाकाई मसाइल मुज़ाकरात से ही हल हो सकते हैं। खैर सगाली के जज्बे के जवाब में खैर सगाली का मुजाहिरा किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के दौरान ईरान के खिलाफ अमेरिका के जारिहाना इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल ईरान के दौरे पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत भी हुई। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर के दरमियान एक माह में ये दूसरी मुलाकात है। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और मुआविन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़िकार बुखारी भी मौजूद थे। इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ईरान के एक रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुँचे, जहाँ एयरपोर्ट पहुँचने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने उनका इस्तकबाल किया। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा ईरान खित्ते में अमन इस्तेहकाम की कोशिशों का हिस्सा है, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान बंगल के रोज़ सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब का मकसद भी ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जारी कशीदगी को खत्म करने की कोशिश है। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म ने दौरे से कबल ही ईरान को सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का पैगाम पहुँचा दिया था, जिसका तेहरान की जानिब से खैर मकदम किया गया था। पाकिस्तानी पार्लिमानी सिफारतकारी की एक बड़ी कामयाबी सामने आई है, जब भारतीय उम्मीदवार शशि थरूर के मुकाबले सेनेटर रज़ा रब्बानी इंटर पार्लिमानी यूनियन के एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन मुंतखब हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी पार्लिमानी सिफारतकारी की एक बड़ी कामयाबी सामने आई है, जब भारतीय उम्मीदवार शशि थरूर के मुकाबले सेनेटर रज़ा रब्बानी अंडर पार्लिमानी यूनियन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन मुंतखब हो गए। शीरी रहमान कमेटी बराए पायदार तरक्की, जावेद अब्बासी ड्राफ्टिंग कमेटी के रुकन मुंतखब। पार्लिमानी सिफारतकारी में शानदार फतह। दुनिया भर की 188 पार्लिमान पर मुश्तमिल यूनियन की 131वीं जनरल असम्बली का इजलास सरेबिया के दारुल हुकूमत बलगराद में शुरू हो गया है। भारतीय वफ्द की भरपूर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तानी उम्मीदवार की फैसला कुन फतेह हुई। पाकिस्तान का पार्लिमानी वफ्द स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की क़यादत में शरीक है। स्पीकर असद कैसर बैनुल अक़वामी पार्लिमानी तंजीम IPU की एशिया पैसिफिक ग्रुप के मौजूदा चेयरमैन भी हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इस अहम ओहदे के लिए सेनेटर रज़ा रब्बानी को नामजद किया था। एशिया पैसिफिक ग्रुप का इजलास इतवार को स्पीकर असद कैसर की सदारत में बलगराद में हुआ। भारतीय वफ्द की भरपूर कोशिश थी कि इंतखाब मौखर कर दिया जाए, ताकि उन्हें इंतखाबी मुहिम चलाने का मौका मिल सके। ताज़ा तरीन TV प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के मसरूफ सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठे हुए 54 साला फनकार मोहम्मद जफर पिछले 35 सालों से पेंसिल खाके ड्राइंग कर रहे हैं, और उनकी ख्वाहिश है कि वो शाही जोड़े को अपना खाका पेश करें। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी बरतानवी शाही जोड़े के दौरे पाकिस्तान के लिए तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की मसरूफ सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठे हुए 54 साला फनकार मोहम्मद जफर पिछले 35 सालों से पेंसिल से खाके बना रहे हैं। अब वो बरतानिया के शहजादा विलियम और उनकी अहलिया केट के दौरे से कबल उनके लिए खाका बना रहे हैं, जो कि 5 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आ रहे हैं। मोहम्मद जफर का कहना है कि पाकिस्तानी दुनिया भर में मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। अपना बनाया गया खाका शाही जोड़े
को बतौर तोहफा पेश करना चाहता हूँ। ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद जफर का कहना था कि पाकिस्तानी अपनी मेहमान नवाजी की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। जब मेहमान हमें मिलने आते हैं तो हम अपना घर सजाते हैं, हम उनके लिए तहाइफ इकट्ठा करते हैं। इसी तरह एक फनकार अपने काम के जरिए अपना पैगाम पहुँचा रहा है। जिस तरह कोई मेहमान आता है तो अपने घर को सजाते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, इसी तरह उनके लिए हम लोग तोहफे तोहफ़ गिफ्ट वगैरह इकट्ठे करते हैं। तो मैं एज ए आर्टिस्ट मुसव्विर जो है वो अपनी तस्वीरों के जरिए अपना पैगाम देता है। उनका कहना था कि एक फनकार की हैसियत से मैंने उनकी तस्वीर को अपने इजहार मोहब्बत के तौर पर बनाया है, जिसे मैं शाही जोड़े को पेश करना चाहता हूँ और उन्हें अपने मुल्क में खुशामदीद कहता हूँ। उनसे मोहब्बत के इजहार के तौर पे मैंने उनका एज ए आर्टिस्ट पोर्ट्रेट बनाया है, जो मैं उनको पेश करना चाहूँगा किसी भी ज़रिए से, तो मैं उनको वेलकम करता हूँ। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अमीर जमात इस्लामी का जलसे से खिताब करते हुए कहना था कि काबिज भारतीय फोर्सेस ने श्रीनगर को कब्रिस्तान बना दिया। पाकिस्तान की हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब नहीं देखना चाहिए। वज़ीर आज़म की तकरीर पर दुनिया ने कोई रद्द अमल नहीं दिया। वज़ीर आज़म कौमी लीडरों से बात करें, मज़ीद इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि पाकिस्तान बचाना है तो हमें श्रीनगर में जंग लड़नी है। हमारी ईमानी ताकत बहुत ज्यादा है। तारीख बताती है कि हम ईमान की ताकत से हमेशा जीते हैं। जमात इस्लामी हैदराबाद के तहत आज़ादी कश्मीर मार्च से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि पहली बार हैदराबाद में बहनों, बेटियों और भाइयों का समंदर देख रहा हूँ। आज हैदराबाद ने कश्मीरियों को पैगाम दे दिया है कि वो उनके साथ हैं। उनका कहना था कि शाह बिटाई की धरती ने हमेशा जालिमों के खिलाफ मजलूमों का साथ दिया। यहाँ के लोगों ने मोदी और मोदी के यारों को ललकारा है। मेरे साथ करोड़ों सरबकप मुजाहिदीन है, मेरे साथ करोड़ों पाकिस्तानी है जिन्होंने 1965 में भी हिंदुओं को, इंडिया को, हिंदुस्तान की फौज को इस कौम ने सबक सिखाया था। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मकबूजा वादी में कश्मीरी जुम्मे की नमाज पढ़ने मस्जिदों में नहीं जा सकते। कश्मीरी पत्थर उठाकर भारतीय फौज से लड़ रहे हैं। कश्मीरी सिर्फ कलिमे और पाकिस्तान के साथ इल्हाक की जंग लड़ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि काबिज भारतीय फौज ने श्रीनगर को कब्रिस्तान बना दिया। पाकिस्तान की हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब नहीं देखना चाहिए। वज़ीर आज़म की तकरीर पर दुनिया ने कोई रद्द अमल नहीं दिया। वज़ीर आज़म कौमी लीडरों से बात करें। मादी में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, लेकिन आज आप देखिए कि हमारी हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी इंसानी हुकूक की कमेटी में शिकस्त हुई और जिनके जहाज पर वज़ीर आज़म साहब बैठकर अमेरिका गए थे, उन्होंने भी उनको वोट नहीं दिया, उन्होंने भी हिंदुस्तान को वोट दिया। ये तुम्हारी कैसी सफारतगरी है, ये तुम्हारी कैसी जुबान है। और वापस आया कहता है मैंने वर्ल्ड कप कापी की तरह जीता है और एक और कामयाबी हासिल की है। मुझे बताया जाए, कहते हैं मैंने बड़ी अच्छी तकरीर की है। तकरीर अच्छी की है, देखना यह है कि दुनिया ने उसका क्या असर लिया है। उसके बाद कर्फ्यू तो ख़त्म नहीं हुई, उसके बाद वहाँ की क़यामतें तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। सिराजुल हक का कहना था कि 16 तारीख को खवातीन की इस्लामाबाद में रैली होगी, फिर भी हुकूमत नहीं जागी तो हम बताएंगे कि क्या करेंगे। जैसे काबुल रूस अमेरिका के लिए कब्रिस्तान बना, भारतीय फौज के लिए श्रीनगर बनेगा। आज 13 तारीख है, 16 तारीख को इस्लामाबाद में खवातीन का अज़म-ए-शान कश्मीर बचाओ रैली है, ताकि जवानों की तरफ से भी, बुजुर्गों की तरफ से भी और आखिर में माओ, बहनों और बेटियों की तरफ से भी इनके ज़मीर के दरवाजे पर हम दस्तक दे दे। लेकिन फिर भी अगर ये बेज़मीर लोग नहीं उठे, फिर हमें कुछ करना पड़ेगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv।
खबर शामिल करेंगे। एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट केस में आसिफ जरदारी को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट केस में आसिफ अली जरदारी को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई थी। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि आसिफ जरदारी की जान को खतरा है। जेल में तिब्बी सहूलियात मिलना आसिफ जरदारी का हक है। जरदारी इस हुकूमत से कुछ भी नहीं लेना चाहते, लेकिन जो कानूनी हक है वो दिया जाए। अदालती रिलीफ हमारा हक है। जरदारी साहब को दिल की तकलीफ हुई तो ये लोग अस्पताल नहीं पहुँचा सकेंगे। अडियाला जेल से अस्पताल तक 1.5 घंटा लग जाता है। लतीफ खोसा का कहना था कि मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी सहूलियात के लिए जरदारी को पिम्स मुंतकिल करने का कहा। ये लोग एक दिन पिम्स ले गए, दूसरे दिन वापस जेल ले गए। जब तक जरदारी जेल में है, जाती अटेंडेंट साथ रखने की इजाजत भी दें। हमारे लोग जेल के बाहर अपना खैमा लगा लेंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास पेरिस में शुरू हो गया है। ताहम पाकिस्तान और FATF के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात भी होंगे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास शुरू हो गया है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और दहशतगर्दी की माली इमदाद के खात्मे के लिए पाकिस्तान के इकदामात पर गौर किया जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास पेरिस में शुरू हो गया है। ताहम पाकिस्तान और FATF के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात 14 अक्टूबर से पेरिस में शुरू होंगे। 18 अक्टूबर तक जारी रहने वाले इजलास में दुनिया भर के 200 से ज़ायद ममालिक और आलमी तंजीमों के नुमाइंदे शरीक हैं। इजलास के एजेंडे में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और दहशतगर्दी की माली इमदाद के खात्मे समेत कई नुकात शामिल हैं। इजलास में पाकिस्तान के वफ्द की सरबराही वफाकी वजीर इक्तिसादी उमूर हमाद असर कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खात्मे के लिए उठाए गए इकदामात पर गौर किया जाएगा। FATF पाकिस्तान के इकदामात से मुतमईन हुई तो उसे ग्रे एरिया की फहरिस्त से खारिज करने की कार्रवाई का आगाज हो सकता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तानी इकदामात को नाकाफी करार दिया तो फिर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने से मुतालिक इकदामात पर गौर किया जाएगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इस्लामाबाद, मरी और पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिले के झटके महसूस किए गए। जलजिले के झटकों के बाइस लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। बाज़ मकामात पर मकानात और इमारत को नुकसान पहुंचने की इत्तला मिली है, जिनसे कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, मरी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिले के झटके महसूस किए गए। जलजिले के झटकों के बायस लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। बाज़ मकामात पर मकानात और इमारत को नुकसान पहुँचने की इत्तलात मिली है, जिनसे कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। जलजिले पैमा सेंटर के मुताबिक जलजिले का मरकज सिलसिला कोहे हिंदू कश में अफगानिस्तान था। रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई, जबकि जलजिले की गहराई 157 किलोमीटर जेर जमीन थी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में शदीद जलजिले से बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और 30 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए थे। मज़ीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।